हेलो स्टूडेंट्स, सो टेस्ट 65 का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल एक अच्छा पेपर है। 25 क्वेश्चंस अराउंड इजी कैटेगरी में है, मॉडरेटली डिफिकल्ट में 16 क्वेश्चंस हैं एंड डिफिकल्ट में 4 क्वेश्चंस हैं। तो 150 टू 155 इज़ अ गुड स्कोर। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें तो Bohr model hydrogen atom pairs of quantities that are quantized. So Bohr proposed that both energy and angular momentum are quantized. Okay, so this is a straightforward question. Energy, radius and angular momentum, these are quantized. If lambda 1 lambda 2 are the wavelengths of first members of Lyman and Paschen series, so Lyman first line, so for Lyman first line transition is from n1 equals 2 to n1 equals 1, and for Paschen first line transition is from n1 equals 4 to n2 equals 3. तो हम लोग फॉर्मूला यूज में ले 1 by lambda 1 is r 1 minus 1 by 2 square, that is 3r by 4, and similarly 1 by lambda 2 is r 1 by 3 square minus 1 by 4 square, that is r into 7 by 9 into 16. So lambda 1 upon lambda 2, that is 7 upon 9 into 16 into 3 by 4. So that is 4 4s are 4, 4 3s are 12, 12 9s are 108, so 7 by 108. तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व कर रहा है, अदरवाइज स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। स्फीयर ऑफ मास है, मूविंग विद वेलोसिटी v collides with another sphere which is at rest. The ratio of final velocity of second sphere to the initial velocity of the first sphere, e coefficient of restitution given है। तो गाइस एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन फॉर्मूला यूज में लेना है, mv बराबर mv1 plus mv2. So we have v2 plus v1 बराबर v, and second equation v2 minus v1 is v minus 0 times e. So v2 minus v1 is ev. अब हमें कैलकुलेट करना है द रेशियो ऑफ द फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड स्फीयर, v2 कैलकुलेट करना है, तो दोनों को ऐड कर देते हैं. सो v2 इज e plus 1 into v by 2, so that is v2 upon v is e plus 1 by 2. तो थोड़ी सी कैलकुलेशन इन्वॉल्व कर रहा है. Bomb of mass 30 kg is at rest, explodes into two pieces of masses this and this. The velocity of 18 kg mass is this, then the kinetic energy of the other mass. So guys, momentum conserve रहेगा, so initial momentum 0 है, and velocity of 18 kg mass is 18 into 6. This is momentum, and then 12 minus v2. So v2 is 18 into 6 upon 12, that is 9 meter per second. ये v2 आ रहा है. So kinetic energy of the other particle k2 is half into m, which is 12 into 9 square. So that is 81 into 6. So that is 486 joule. तो straightforward question है. A particle of mass m is fixed at the end of a light spring and rotated with an angular velocity omega in gravity free space. So this is spring, this is particle, and when we rotate it, its length elongates. So let's say extension is x, so it is rotating with angular velocity omega about one end. So centripetal force is provided by a spring force, so kx is m omega square r, which is l plus x. So increase in the length, so k x कॉमन लेते हैं हम लोग, तो k माइनस एम ओमेगा स्क्वेयर इंटू एक्स इक्वल्स एम ओमेगा स्क्वेयर एल. रीअरेंज करेंगे तो बी ऑप्शन आ रहा है. सो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. Kinetic energy k is given and centripetal force, so kinetic energy is mv square by 2 is equal to as square. So mv square by r, which is centripetal force, is mv square by r, which is as 2as square by r. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं. मासेज ऑफ 3 वायर्स आर गिवन, लेंस आर गिवन, द रेशियो ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंसेस कॉपर. तो r इज रो एल बाई ए, r इज रो एल बाई ए. अब मास में एक्चुअली वॉल्यूम आएगा तो ऊपर नीचे हम लोग रो एल स्क्वेयर अपॉन ए एल, ये हमारा वॉल्यूम हो गया, एंड रो एल स्क्वेयर डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये मास हो गया. सो प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वेयर बाय एम. सो r1 is to r2 is to r3, r1 is to r2 is to r3. So masses are in the ratio 1 is to 3 is to 5, and lengths are in the ratio 5 is to 3 is to 1. So 5 square, 3 square, 1 square, these are L squares, and mass 1,
3, 5. So that is 25 is to 3 is to 1 by 5. That is 125 is to 15 is to 1. So D is the correct option. तो थोड़ा कैलकुलेशन इन्वॉल्व कर रहा है, बट इस तरह के क्वेश्चंस आप एक्सरसाइज शीट्स में किए हुए हैं. सो रो 1, रो 2, L1, L2 गिवन है और हमें निकालना है इक्वल रेजिस्टिविटी. सो इन सीरीज, so R is R1 plus R2. So that is rho equivalent L1 plus L2 by A is rho 1 L1 by A plus rho 2 L2 by A. So we are getting rho 1 L1 plus rho 2 L2 upon L1 plus L2. In the adjacent circuit, the instantaneous current. So guys, IM is VM by Z और हम देख रहे हैं XL की वैल्यू है हमारी ओमेगा इंटू L, that is 100 ohm. So VM is given 200 and Z is 100 square plus 100 square under root, which is 100 root 2. So that is root 2 ampere. This is IRMS, and tan phi is XC minus XL upon R. So 0 minus 100 upon 100, that is minus 1. So phi is minus pi by 4. So now expression of I is Im sine of 100t minus pi by 4. तो थोड़ा कैलकुलेशन इन्वॉल्व कर रहा है. In a series LCR circuit, the voltage drop across resistance is this, across inductors and capacitor is this. Okay, so since VC is greater than VL, so phi is greater than 0. Current is leading the voltage, not the voltage is leading the current. तो A ऑप्शन गलत है. And V is VC minus VL का square plus VR square under root. So this comes out to be 10 volt. So V is greater than VR, greater than VL and less than VC. The voltage drop across each element will be less than the applied voltage. No, VC is greater than V. So this is false. Power factor. पावर फैक्टर इज कॉस फाई इज आर बाई जेड. ऊपर नीचे करंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए. सो दिस इज वी आर अपॉन अप्लाइड वोल्टेज वी. वी आर इज 8, वी इज 10. सो पावर फैक्टर इज 0.8. So it can never be greater than 1. We could have directly said that it can never be greater than 1. So this is also false. So none of these. An electric dipole is kept on the axis of a uniformly charged ring. The direction of the dipole moment is along the axis. See, this is a very good question. Very डिज़ाइन अ वेरी गुड वे. तो ये रिंग है और ये इसकी एक्सिस है और यहाँ पे r बाई रूट 2 पे हम लोगों ने डाइपोल रखा हुआ है. तो गाइज रिंग का फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में यदि फील्ड के अलोंग डाइपोल को अलाइन करके रखा हुआ है तो ऐसे में फोर्स की वैल्यू होती है, फोर्स का मैग्नीट्यूड P मॉड ऑफ D बाई dx. अब यहाँ खास बात ध्यान देने वाली ये है कि एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड एट प्लस माइनस आर बाई रूट 2 इज मैक्सिमम. ये हमने याद किया होता है. दैट मीन्स डी बाई डी एक्स एट प्लस माइनस आर बाई रूट 2 इज 0. सो दिस सिंस डी बाई डी एक्स इज 0, सो फोर्स इज 0. आप डिफ्रेंशिएट करके सॉल्व करेंगे तो भी 0 आ जाएगा. तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन कि आपको रिकॉल हो जाए कि भाई डी बाई डी एक्स इस पॉइंट पे 0 है. तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में फोर्स कैसे निकालेंगे? एफ पर आवर पी डी बाई डी एक्स. If the force exerted by an electric dipole on a charge q at a distance 1 meter is F, then force at 2 meter. So we know force is QE and electric field for a dipole in a given direction is proportional to R cube. So F dash upon F is 1 by 8. डिस्टेंस आपने डबल कर दिया है तो फील्ड 1 by 8 टाइम्स हो जाएगा. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. बॉडी ऑफ मास m is placed at the center of a spherical shell of radius r and mass capital M and the potential on the surface. तो गाइस ये शेल है और यहाँ मास रखा हुआ है. तो हमें सरफेस पे या सरफेस के बाहर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो डायरेक्ट बोल सकते हैं माइनस जी M enclosed upon R. So that is minus G capital M plus small m by R. So straight forward question है. दोनों का अलग अलग लिख के हम लोग ऐड भी कर सकते थे. The weight of a body at the center of earth, we know at the center of earth small g is 0, so weight is 0. A body having a temperature of this is kept in a room having a temperature of this. तो हमें given है कि T of surrounding is equal to T of body. But a body continuously emits as well as absorb radiations at all temperatures irrespective of the relationship between Ts and T. So does the body emit any radiation? Yes, it does emit. So A is the correct option.
Variation of internal energy with density of 1 mole of monoatomic gas is depicted. So rectangular hyperbola. So this means u rho is equal to constant. So u is proportional to T and rho is proportional to 1 upon V. So T by V is constant. So that is T is directly proportional to V. So this means pressure is constant. So isobaric process. And here density is increasing. That means volume is decreasing. So process is isobaric compression. Isobaric compression at constant pressure, volume is decreasing. So look at the options. At constant pressure, volume is decreasing. So D is the only option in which pressure is constant and volume is decreasing. So this is a good question. The coefficient of performance. So coefficient of performance alpha is TC upon TH minus TC. तो TC हो गया हमारा 273 plus 10 283 and TH minus TC is 20. तो TH minus TC is 10. So this is 28.3. तो straightforward question है. A proton and alpha particle are projected normally with the same speed. What will be the ratio of radii? So straight away question है. R is mv by qb. So proportional to m by q. So ratio of rp upon r alpha. Mass का ratio है 1:4. Charge का ratio है 1/2. So this is 1:2. When a charged particle moving with velocity v subject to a magnetic field, the force on it is non-zero. So we know F is qv cross b, and if it is non-zero, that means velocity and magnetic field are neither parallel nor anti-parallel. So the angle between v and b should be other than 0 degree and 180 degree. Straightforward question है. The magnetic needle magnetometer makes 12 oscillations per minute in BH. When external short bar magnet is placed at some distance along the axis of the needle, it makes 15 oscillations per minute. So guys, frequency, we are given frequency. So frequency is 1/2 pi under root capital MB upon I. So proportional to root B, और capital B is proportional to F square. तो पहले केवल BH exert हो रहा था, जो बार मैग्नेट रखी हुई थी वो BH के इन्फ्लुएंस में ऑसिलेट कर रही थी. अब हम लोगों ने BH के साथ साथ B भी अप्लाई कर दिया है एक्सिस के अलोंग एक्सटर्नल फील्ड. तो ऐसे में जो नेट फील्ड हो जाएगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा. यहाँ BH है फील्ड, यहाँ B प्लस BH है. ओके, तो अकॉर्डिंगली फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है. और फिर हम लोगों ने यदि बार मैग्नेट का पोल रिवर्स कर दिया है तो ऐसे में एक्सटर्नल फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो नेट फील्ड हमारा रिड्यूस हो जाएगा. नेट फील्ड जो होगा वो BH माइनस B हो जाएगा. तो ये 3 डिफरेंट सिचुएशंस हैं. ओके, तो BH plus B upon B is F2 square upon F1 square. So F2 is 15 and F1 is 12. So 15 by 12. So 1 plus B by BH is, that is 5 by 4. So 25 by 16. So B by BH is 9 by 16. Okay, now F3 square, F3 upon F1 is under root BH minus B upon BH. So that is 1 minus B by BH, which is 1 minus 9 by 16. So that is under root 7 by 16. So F3 is F1, which is 12 into under root 7 by 16. So that is under root 7, 144 upon 12. So root 63. तो थोड़ा कैलकुलेशन इन्वॉल्व कर रहा है. अच्छा, हम लोगों ने BH माइनस B क्यों किया, B माइनस BH क्यों नहीं किया? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो रेशो आ रहा है B अपॉन BH वो 1 से लेस आ रहा है. दैट मीन्स B की वैल्यू BH से लेस है. सो इट शुड बी BH minus B when polarity of magnet is reversed. Body projected vertically upwards crosses a point at a height h twice in the journey at time t1 and t2. तो ये रिजल्ट हमें याद भी है कि किसी हाइट को 2 बार क्रॉस कर रहे हैं तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो t1 प्लस t2 होगा. उसको डायग्राम में मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ. देखिए, सपोज यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया तो ये O पॉइंट है और A पॉइंट है. तो T फ्रॉम O टू A ये हमें T1 गिवन है
and t from a to b, O to A and then B and then A, that is T2. तो यहाँ से यहाँ O से A तक का डायरेक्टली टाइम T1 है एंड O से A फिर देन B एंड देन A, दैट इज़ टाइम T2. यहाँ पे टाइम T2 है. तो O से A तक का टाइम, ये पूरा टाइम हमारा यहाँ से यहाँ तक का T2 है और यहाँ से यहाँ तक का T1 है. तो गाइज़ यहाँ से यहाँ तक का वापस T1 होगा, यानी कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो मेरा T1 प्लस T2/2 होगा. अब टॉप से नीचे की तरफ इक्वेशन लिखे हैं अपन, डेल्टा वाई इज़ UT प्लस हाफ AT स्क्वेयर. सो टॉप पे U0 है, हाफ AG है और T1 प्लस T2/2 का स्क्वेयर. तो इक्वेशन से क्रॉस चेक करें तो ये हो जाएगा हमारा 2G अपॉन T1 प्लस T2/4 का स्क्वायर. देखिए C से रिलेट कर लीजिए, C से रिलेट हो रहा है, सो दिस इज करेक्ट. थोड़ा कैलकुलेशन इन्वॉल्व कर रहा है. वन स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ टावर एट रेस्ट एंड साइमल्टेनियसली अदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स. तो टावर से एक स्टोन को हम लोग नीचे गिरा रहे हैं, जस्ट ड्रॉप कर रहे हैं. सो इसको तो हम लोगों ने ड्रॉप किया, U1 की वैल्यू 0 है और U2 को हम लोगों ने सेकेंड वाले को ऊपर लॉन्च किया है. तो रिलेटिव वेलोसिटी जो है U21 दैट इज U and acceleration of 2 relative to 1 is 0. Guys ध्यान रहे, under gravity irrespective of angle of projection relative acceleration is 0. So motion of one projectile with respect to another projectile is uniform at constant velocity. So that's why separation between them will keep on increasing linearly. So A is correct option. हमें relative motion से solve करना था इसको, relative acceleration 0 रहेगा. ब्लॉक ऑफ मास 1 kg लाइज ऑन ट्रक, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज दिस, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक इज दिस. तो जो ब्लॉक ट्रक के बेड पे रखा हुआ है, तो ट्रक ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है और जो ब्लॉक है उसमें स्लिपिंग नहीं हो उसके लिए फ्रिक्शन उसको एक्सेलरेट करा रहा है. तो फ्रिक्शन इक्वल्स MA दैट इज़ 1/5. अब चेक कर लीजिए कि भाई ये फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से लेस है ना, अदरवाइज स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी और फ्रिक्शन लिमिटिंग काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर होगा. तो FS मैक्स हम लोग देख रहे हैं μSN, तो वो हमारा आ रहा है μSmg दैट इज 6 न्यूटन. सो सिंस F इज लेस देन FS मैक्स दैट मीन्स सिचुएशन इज पॉसिबल. सो फ्रिक्शन एक्टिंग इज 5 न्यूटन. तो टेम्पटिंग रहता है कि हम μSmg निकाल दें, बट ऐसा नहीं, फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होगा, अपने को चेक करना होगा. दोनों स्प्रिंग्स लाइट है, कंटिन्यूस है, तो ऐसे केस में दोनों में टेंशन सेम रहेगा, तो दोनों स्प्रिंग्स की रीडिंग ही 8 kg रहेगी. द पार्टिकल एमिटेड इन द डीके. सो गाइज हम लोग देख रहे हैं कि जो मास नंबर है A1 माइनस A2 वो 4 है. तो मास नंबर अल्फा डीके से ही चेंज होता है. दैट मीन्स अल्फा डीके कितना है, नंबर ऑफ अल्फा डीके 1. अब इसकी वजह से जो z है वो हमारा 2 से डिक्रीज होना चाहिए. तो z हमारा 2 से डिक्रीज होना चाहिए, बट z की वैल्यू सेम है. तो z 2 से डिक्रीज होना चाहिए बट z की वैल्यू सेम है, यानी कि कुछ और इमिशन हुआ है जिससे z की वैल्यू 2 से इंक्रीज हो गई है. तो z की वैल्यू 2 से इंक्रीज तब होगी जबकि बीटा प्लस डीके होंगे, 2 बीटा प्लस डीके होंगे. सो 1 अल्फा डीके एंड 2 बीटा प्लस डीके. सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. इन द गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन X, तो हम देख रहे हैं X का जब हम लोग नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कंजर्व कर रहे हैं, मास नंबर कंजर्व कर रहे हैं, तो हमारे पास X का A आ रहा है 1, और जब हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कंजर्व, चार्ज कंजर्व कर रहे हैं, तो जो Z आ रहा है वो आ रहा है 0. सो दैट मीन्स दिस इज न्यूट्रॉन. द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ ब्लॉक को सिंगल स्प्रिंग से अटैच किया T1, सेकेंड से अटैच किया T2. अब दोनों स्प्रिंग्स को सीरीज में लगाया है. तो गाइज T is 2 pi under root m/k, so T square is proportional to 1/k. So T1 square is A upon K1, T2 square is A upon K2 and T square is A upon K, इस तरह से. तो 1/k equivalent is 1/K1 plus 1/K2. So we can write T square equals T1 square plus T2 square. सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपने एक्सरसाइज शीट में ज़रूर सॉल्व किया होगा. फेज डिफरेंस निकालना है, तो ध्यान रहे फेज डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले कॉस को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो जब कॉस को साइन में कन्वर्ट करेंगे तो ये फंक्शन हमारा हो जाएगा 10⁻⁻6 साइन ऑफ
100t प्लस x/50 प्लस π/2 ये होगा। तो अब देखिए, अब ये दोनों साइन में हैं तो आर्ग्यूमेंट्स का डिफरेंस ले लीजिए। तो आर्ग्यूमेंट्स का डिफरेंस लेंगे तो π/2 माइनस 0.5, π/2 इज़ 1.57 रेडियन माइनस 0.5 सो 1.07। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व कर रहा है। जब भी फेज डिफरेंस निकालना है तो पहले दोनों फंक्शंस को साइन या कोसाइन में कन्वर्ट करना है। के मैक्स 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है, तो इसी इलेक्ट्रॉन को अपने को स्टॉप करना है, तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा दैट विल बी 3 वोल्ट। तो ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। दोनों ग्राफ्स में हमारी इंटेंसिटी सैचुरेशन करंट अलग अलग है। सेकेंड ग्राफ में सैचुरेशन करंट ज़्यादा है, दैट मीन्स इंटेंसिटी भी सेकेंड ग्राफ में ज़्यादा है। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। A liquid drop having surface energy E is spread into 512 droplets. The final surface energy. So final surface energy U final upon U initial. So n drops हैं और हर एक की रेडियस स्मॉल r है, तो एनर्जी 4πr² s, ये फाइनल एनर्जी है, और इनिशियल एनर्जी 4πR² s. So this is n small r by capital R square. Now we know from volume conservation capital R is n to the power 1/3 small r is n to the power 1/3. So volume conserve करेंगे तो r cube is n small r cube. So capital R is n to the power 1/3 small r. तो capital small r by capital R is n to the power minus 1/3. So n into n to the power minus 1/3 का square. So that is n to the power 1 minus 2/3. That is n to the power 1/3. Okay. So U final is a U initial which is E into n to the power 1/3. So that is E 512 raised to power 1/3. Now 512 is 2 raised to power 9 into 1/3. So that is 8E. So थोड़ा कैलकुलेशन इन्वॉल्व कर रहा है, बट सरफेस टेंशन का वैसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। बॉडी फ्लोट्स, होल सिस्टम फॉल्स अंडर ग्रेविटी, सो अपथ्रस्ट। सो अपथ्रस्ट मीन्स बॉयंसी फोर्स, एंड इन एक्सेलरेटिंग स्टेट बॉयंसी फोर्स इज weight, effective weight of displaced fluid, that is rho f v g effective, and g effective is vector g minus vector a. तो फ्रीली फॉलिंग स्टेट है तो g effective 0 है, तो इसलिए अपथ्रस्ट भी 0 होगा। Given that the velocity of liquid in quartz is this, well, glycerin is this, then shift, तो हमें शिफ्ट निकालना है। तो शिफ्ट का रिजल्ट गाइज हमें ध्यान है, जब भी ऑब्जेक्ट और व्यूअर के बीच में हमें ग्लास स्लैब इंसर्ट करेंगे तो जो शिफ्ट की वैल्यू है वो शिफ्ट की वैल्यू होगी हमारी, शिफ्ट इज T1 minus 1 upon n. This n is refractive index of slab relative to outer medium. So here this is T1 minus 1 upon n of quartz with respect to glycerin. Okay. So this is T1 minus n glycerin upon n quartz. Now we know n1 upon n2 is C by V1 upon C by V2, that is V2 upon V1. So we can write T1 minus n glass upon n quartz is V quartz upon V glass. So T हमें given है 18 सेंटीमीटर, 1 minus V quartz given है 1.5 and V glass given है 9/4. So this is 18, 1 minus 2/3. So 18 into 1/3 which is 6 सेंटीमीटर. तो थोड़ा कैलकुलेशन इन्वॉल्व कर रहा है। कॉन्सेप्ट भी याद रखना है कि ऑब्जेक्ट और व्यूअर के बीच में यदि हम स्लैब इंसर्ट कर देंगे तो ऐसे में ऑब्जेक्ट टूवर्ड स्लैब शिफ्ट हो जाएगी। लेज़र लाइट, तो लेज़र लाइट गाइज यूनी डायरेक्शनल होती है, यानी कि हाईली पैरेलल होती है, हाईली मोनोक्रोमैटिक होती है ना, और कोहेरेंट होती है। लेज़र लाइट इज़ हाईली कोहेरेंट। तो कन्वेंशनल लाइट जो होती है वो इनकोहेरेंट होती है, बट लेज़र लाइट इज़ हाईली कोहेरेंट, तो ये हमें ध्यान रखना है। सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे के लिए ध्यान रखना है इसको, यदि अभी ध्यान नहीं था तो। अबाउ टॉर्क ऑन द प्रोजेक्टाइल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, एवरेज टॉर्क निकालना है अपने को। तो पी और क्यू के बीच में एवरेज टॉर्क निकालना है। सो टॉ एवरेज इज डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी, सो दैट इज एल एट क्यू माइनस एल एट पी अपॉन डेल्टा टी। तो क्यू पे हम लोग देखें तो क्यू पे वेलोसिटी स्पीड वापस से यू होगी और एंगल थीटा होगा, और पी क्यू का डिस्टेंस आर है, तो एल क्यू हो जाएगा अपना एम यू आर साइन थीटा, एल पी ज़ीरो है अपॉन टाइम। नाउ रेंज अपॉन टाइम इज यू एक्स, सो दैट इज यू कॉस थीटा, सो दैट इज एम यू स्क्वायर बाई टू साइन थीटा कॉस थीटा विच इज साइन 2 थीटा।
सो एवरेज टॉर्क इज mu स्क्वायर बाई 2 sin 2 थीटा। आपने किया होगा एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन, और थोड़ा सा मॉडरेटली डिफिकल्ट है। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट टॉर्क, तो डेल्टा थीटा गिवन है, टाइम गिवन है, और अपने को एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है। सो डेल्टा थीटा इज ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वेयर। ओमेगा नॉट 0 है, अल्फा इज ट्वाइस ऑफ डेल्टा थीटा अपॉन टी स्क्वेयर। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं 800 अपॉन 100, दैट इज 8 रेडियन पर सेकेंड स्क्वेयर। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। If the ratio of concentration of electrons and holes is this, currents is this, then the drift velocity. So guys, I is NEA VD. So VD is proportional to I upon N. So VD1 upon VD2. I का रेशो हमें गिवन है concentration and ratio of their currents. Currents का रेशो गिवन है 7/4. Concentrations का रेशो गिवन है 7/5. So this is 5/4. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। In the following common emitter configuration हमें बताना है कि भाई वोल्टेज आउटपुट कितना है। तो वोल्टेज आउटपुट कितना होगा, वोल्टेज आउटपुट हमारा है वोल्टेज VO अपॉन Vin इज करंट गेन इनटू RO अपॉन RI, R आउटपुट अपॉन R इनपुट। ओके, सो VO इज Vin बीटा RO अपॉन RI। तो फिगर से क्लियर है, जो V इनपुट गिवन है 1 मिली वोल्ट, सो 10⁻³ बीटा हमें गिवन है 100, RO 10 किलो ओम है और RI 1 ओम है। सो दिस इज 10⁻3, सो VO इज 1, सो आउटपुट वोल्टेज इज 1 वोल्ट। The coefficient of linear expansion of brass and steel are this and this. When we take a brass rod of length L1 and steel rod L2, the difference in their lengths. So guys, delta L is L2 minus L1. So now delta of delta L, that is difference in lengths, is delta L2 minus delta L1, and we want it to be 0. That means delta L2 बराबर delta L1. That means L2 alpha 2 should be equal to L1 alpha 1. तो ऐसे क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अ पब्लिक पार्क स्क्वायर एरिया इज दिस, द साइड ऑफ पार्क। सो गाइज, A is L square, so L is proportional to under root A, so delta L by L is half delta A by A. तो हमें यहाँ से L की वैल्यू मिल रही है 10, so delta L is L by 2 into delta A by A, so L is 10 by 2, delta A is 0.2, and this is 100, so this is 0.01. so L की एक्सप्रेशन लिखेंगे हम लोग 10 प्लस माइनस 0.01। तो थोड़ा कैलकुलेशन इन्वॉल्व कर रहा है, बट सॉल्वेबल है। In a YDAC, 12 fringes are observed to be formed in a certain segment of screen when light of wavelength lambda 1 is used. Now when lambda 2 is used, number of fringes observed. So in a given width y, number of fringes is n, then y is n lambda capital D by small d. So in the given region, y is fixed, capital D small d is fixed, so number of fringes confined is proportional to 1 upon lambda. So n2 upon n1 is lambda 1 upon lambda 2. Lambda 1 is 600, lambda 2 is 400, so this is 1.5. So n2 is 1.5 n1, this is 1.5 into 12, so 18. तो सॉल्वेबल क्वेश्चन है, बस थोड़ी कैलकुलेशन इन्वॉल्व कर रहा है। इफ न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ माइक्रोस्कोप इज इंक्रीज, देन तो रिजॉल्विंग पावर जो हमारी है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, दैट इज 1.22 लैम्डा अपॉन 2n साइन बीटा। इस 2n साइन बीटा को हम लोग न्यूमेरिकल अपर्चर बोल रहे हैं, सो दिस इज प्रपोर्शनल टू 1 अपॉन न्यूमेरिकल अपर्चर। सो यदि हम न्यूमेरिकल अपर्चर इंक्रीज कर रहे हैं तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन हमारी डिक्रीज होगी। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Wave of frequency this, speed this, distance between two nearest points on which our phase difference is 60 degree, then will be around. So we know that delta phi is 2 pi by lambda into delta x, that is 2 pi by lambda is v upon frequency into delta x. So delta x is v delta phi upon 2 pi f. So now v is given 350, delta phi is 60 degree, so pi by 3 radian upon 2 pi, and frequency is 500. So pi cancels, so this is 350 upon 3, so 116.67
अपॉन 1000, सो दैट इज़ 0.116 मीटर और 11.67 centimeter. So correct option is 12 centimeter. The direction of propagation of electromagnetic wave, we know V vector is proportional to, V vector is in the direction of E cross B, तो ये हम ध्यान रखना है. The potential energy for a force field is given by this, the force acting on the particle at this. So this is again a difficult question. F we know is minus del U by del X I cap minus del U by del Y J cap. So minus, नाउ डेल यू बाई डेल एक्स, कॉस एक्स प्लस वाई को हमें एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है वाई को कॉन्स्टेंट ट्रीट करते हुए, सो दैट इज माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई आई कैप. अब ऐसे ही हमें डेल यू बाई डेल वाई, वाई को वेरिएबल ट्रीट करना है, एक्स को कॉन्स्टेंट ट्रीट करना है, तो डिफ्रेंसिएशन होगा हमारा माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई जे कैप, तो माइनस कॉमन आ रहा है, सो दिस इज साइन ऑफ एक्स प्लस वाई आई कैप प्लस जे कैप. नाउ साइन ऑफ x is given 0 plus pi by 4 I cap plus j cap, so that is I cap plus j cap by root 2. So B is the correct option. So this is a difficult question. Usually हम लोग f पर माइनस डी by dx करते हैं, बट जब u x y z तीनों का फंक्शन है तो f फैक्टर इज माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई माइनस डेल यू बाई डेल वाई जे माइनस डेल यू बाई डेल जेड के. तो आपने सॉल्व किया होगा इस तरह क्वेश्चन. तो ओवरऑल एक अच्छा पेपर है. जो भी नए कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने सीखे हैं, पर्टिकुलरली डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, फोर्स कैसे निकालते हैं और वहाँ जीरो क्यों था, और एक आध कॉन्सेप्ट और हम लोगों ने देखा, तो वो अच्छे